Welcome to Jigyasu online classes. In today's video, we are going to discuss about the properties of matrices and determinant. So first of all, note down these properties and then we will discuss some questions related to these properties. If we are given a matrix A of the order n by n, square matrix A of the order n by n, and you multiply this matrix by a constant quantity lambda and find the determinant of this lambda A. What is the value of this determinant? This is equal to lambda to the power n into determinant of A. What is n? आपको मैंने बताया मैट्रिक्स A is a square matrix of the order n by n. A is a matrix of the order n by n. So determinant of lambda into A is equal to lambda to the power n into determinant of A. Second property, if we are given two matrices A and B of the same order, if A is a matrix of the order n by n, B is also matrix of the order n by n, then product AB is also a square matrix of the order n by n. And you have to find determinant of AB. So determinant of AB कितना होता है बच्चों? This is equal to होता है determinant of A into determinant of B. Based on these two properties, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसको डिस्कस करते हैं. Let A and B are square matrices of order 3 by 3 such that determinant of A is equal to 2, determinant of B is equal to 3. आपको क्या करना है? You have to find determinant of 3AB. Determinant of 3AB पता करना है. Okay? So if A and B are the square matrices of the order 3 by 3, AB 3 by 3 order का है, B का order भी 3 by 3 है. So AB का order क्या होगा? Order of the matrix AB will be also 3 by 3. अब ये एक मैट्रिक्स है और आपने इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यूज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 to the power, ऑर्डर ऑफ AB 3 है तो 3 to the power 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ AB. नाउ यूज द सेकंड प्रॉपर्टी, ये 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ AB, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस AB क्या होता है बच्चों? ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P. अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A भी गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ B भी गिवन है, तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 to the power 3 तो पता है आपको, ये 27 हो जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ A इज गिवन एज 2, डिटर्मिनेंट ऑफ B इज गिवन एज 3. आप इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट द आंसर. सो ये मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई है और इन दोनों प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया. कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. if you are given a matrix A and you find the transpose of this matrix, you all know how to find the transpose of the matrix A, and determinant of A dash denotes the transpose of the given matrix A. डिटर्मिनेंट ऑफ A dash क्या होता है? ये होता है बच्चों इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A. नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी. मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी क्वेश्चन पूछा जाता है. सो नोट डाउन दैट इफ यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A and adjoint A, adjoint matrix, you all know how to find the adjoint of a given matrix. A into adjoint A, this is equal to कितना होता है? This is equal to determinant of A into I. What is I? I is the identity matrix. Sometimes you are given a matrix, let A is a matrix, square matrix, मैं 2 by 2 का ले रहा हूं, 2 3 7 1. okay, and you have to find the value of A into adjoint A. A given है और आपको क्या पता करना है? A into adjoint A पता करना है. तो
ऐसा नहीं है कि आप एडजॉइंट ए पता करो फिर आप इन दोनों का प्रोडक्ट पता करो, वो सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। सो अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो क्या करना होगा, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता करना सबको आता है, 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ अदर डायगोनल एलिमेंट्स 7 into 3, ये क्या आ गया 2 minus 21 minus 19 आ गया। ओके तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होना है। अब -19 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा ऑल एलिमेंट्स के साथ में, तो आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा -19 0 0 एंड -19। तो कभी बच्चों एक मैट्रिक्स दिया जाए, इट मे बी ऑफ द ऑर्डर 3 by 3, इट मे बी ऑफ द ऑर्डर 2 by 2, और आपसे कहा जाए फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो क्या करना है, ये प्रॉपर्टी यूज करना है, ये प्रॉपर्टी यूज करना है। इसको नोट कर लीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और एक तरह से पूछा जाता है, ये एक तरीके से और ये पूछा जाता है, समटाइम्स you will be given a into adjoint a, if a into adjoint a is given as 10 0 0 10, ये given है, और then आपसे कहा गया है find determinant of a into adjoint a given है, a into adjoint a given है, and you have to find determinant of a। सेम प्रॉपर्टी आप यूज करो, आपको पता है, देखो यहां से a इंटू एडजॉइंट ए क्या गिवन है 10 0 0 10। तो बच्चों ये देखो किसी भी मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स में अगर कुछ कॉमन है तो उसको पूरे मैट्रिक्स में कॉमन लिया जा सकता है। सो इट कैन बी रिटन एज 10 इंटू 1 0 0 1 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 10 इंटू आई, और आपको रूल क्या पता है, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। तो a इंटू एडजॉइंट a अगर 10 i के इक्वल है तो a डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो गया, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो गया 10 हो गया। सो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, समटाइम्स a इंटू एडजॉइंट a विल बी गिवन टू यू एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आपसे पूछा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a बताओ। तो एक आपको आप इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन और मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर और बनता है, वो डिस्कस करते हैं। आपको क्या बताया गया है, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू एडजॉइंट a, दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है दैट इज आल्सो मैट्रिक्स। राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ a इज अ नंबर इंटू आई, वो क्या मिलेगा, एक आपको मैट्रिक्स मिलेगा। अब इफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल तो उनके डिटर्मिनेंट भी इक्वल होंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है। अब बच्चों इफ a इज अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n by n, जनरल केस ले लेते हैं, a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n by n, तो क्या होगा, आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता करोगे, इस मैट्रिक्स का, इसको क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा और उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहां से क्या मिलेगा, ये मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n। ओके, आप इसको पता कर सकते हो, a इंटू एडजॉइंट a कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a कितना आ गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया। Determinant of a into adjoint a comes out to be determinant of a to the power n. What is n? n is the order of the matrix. ये प्रॉपर्टी आपको नोट कर लेना चाहिए। इसके आगे भी हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं इसको, और वो डिराइव्ड रिजल्ट जो मिलेगा उस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन मोस्टली आपके पेपर में मिलता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। अब देखो बच्चों, a इंटू एडजॉइंट a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b क्या बताया गया था, डिटर्मिनेंट ऑफ a
into determinant of B. So it can be written as determinant of A into determinant of adjoint A is equal to determinant of A की power n. And if A is a non-singular matrix means determinant of A is not 0. If A is a non-singular matrix means determinant of A is not 0. तो आप लिखोगे if A is a non-singular matrix, that is determinant of A is not 0, then अभी आपको क्या मिला था, determinant of A into determinant of adjoint A is equal to determinant of A की power n था. If A is a non-singular matrix, देखो singular matrix and non-singular matrix की definition आपको बताई जा चुकी है. Singular matrix means whose determinant is 0. Non-singular matrix means whose determinant is not 0. So if A is a non-singular matrix, मतलब determinant of A is not 0, so we can divide both sides by the determinant of A. तो क्या मिल जाएगा? Determinant of adjoint A is equal to determinant of A की power n minus 1. Determinant of A की power n minus 1. Most important property, आप इसको नोट करो. Determinant of adjoint A is equal to determinant of A to the power n minus 1. Based on these properties, मैं एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, वो नोट करिए. Let A is a matrix. Let A be a square matrix. Let A be a square matrix of the order 3 by 3, such that determinant of adjoint A is equal to 64. Then find determinant of 2A dash. क्या पता करना है बच्चों? Determinant of 2A dash पता करना है. A dash क्या है? Transpose of the matrix A. What is A dash? Transpose of the given matrix A. Okay. अब देखो बच्चों, हमें determinant of 2A dash पता करना है. A dash का ऑर्डर क्या होगा? जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होगा, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या करते हो आप? गिवन मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में. जो न्यू मैट्रिक्स मिलता है दैट न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो आपको ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल गया. पहली प्रॉपर्टी क्या बताई है मैंने? किसी भी मैट्रिक्स को अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? दैट स्केलर क्वांटिटी टू द पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वो 3 by 3 है इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A डैश. और बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ A डैश कितना होता है? डिटरमिनेंट ऑफ A डैश इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ A. अब डिटरमिनेंट ऑफ A तो हमें दिया नहीं गया है, हमें क्या गिवन है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A. डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A गिवन है, सो अप्लाई दैट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो भी डिस्कस किया था. क्या बताया था? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस 1. यहां पर n कितना है? 3, क्योंकि A का ऑर्डर क्या है? 3 by 3. तो वो A आपका ये आ गया. डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज गिवन, दिस इज 64 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर. अब डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर पता है तो डिटरमिनेंट ऑफ A पता चल जाएगा. एक माइनर सी मिस्टेक हो जाती है आप लोगों से, उसको ध्यान रखना कि डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर अगर 64 है और आपसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, तो आप ये भी बता सकते हो, ये बोलते हो मोस्टली आपसे सुना है मैंने कि आप डिटरमिनेंट ऑफ A पूछा जाता है तो आप 8 बोल देते हो, -8 नहीं लिखते हो. तो डिटरमिनेंट ऑफ A तो माइनस में भी हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे? यहां से डिटरमिनेंट ऑफ A लिखोगे +-8, क्योंकि 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, -8 का भी स्क्वायर तो 64 होगा. तो डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर अगर 64 है तो डिटरमिनेंट ऑफ A +-8 लेना है. बी केयरफुल. और अब डिटरमिनेंट ऑफ A पता चल गया है तो यहां से रख दो डिटरमिनेंट ऑफ A +-8. फाइनल आंसर आ जाएगा +-64. तो मैंने अभी ये जो छोटे छोटी सी प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज बताई हैं, बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज 1 मार्क का क्वेश्चन क्रिएट होता है, बनता है. तो आपको ये याद रखना है.
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं और डिस्कस करने वाला हूं। वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? आपको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की मीनिंग पता है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मीनिंग पता है? इनवर्स पहले तो एग्जिस्ट कौन से मैट्रिक्स का करता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एंड इफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है? यू गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेफिनेशन है इनवर्स की, ए एंड बी आर कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो गया? 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो गया बच्चों? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां पर 0 नहीं होगा, बिकॉज इनवर्स तो उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है which is non singular matrix. So ये याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। So based on these properties 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। In next video we will discuss some other properties and questions related to these properties. So आप